You're live, ma'am. Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1. Subject is financial accounting. Fine, because this is your first class, I think. I don't know how many of you have attended the previous class. So first of all, I just want to discuss the syllabus with you. You must know the syllabus that you should go through in your whole semester. So this is your syllabus. The paper is financial accounting and the following topics you need to be covered in this. The first unit will be the introduction unit. Introduction unit in which you have to study about the basic concepts of accounting. You might have studied in your 11th 12th also, like basic accounting principles, जिसमें आपको like objectivity, feasibility, ये सब आपके basic principles होते हैं, right? Basic concept, accounting concepts and conventions. Accounting concepts जो आप पढ़ के आए हो, separate entity, going concern, money measurement, dual aspect. So these are the various concepts जो आपने matching concept पढ़ा होगा, right? Accounting conventions like full disclosure, materiality, conservatism, these are the conventions. Introduction to accounting standards and Indian accounting standards. So जो accounting standards you all know कि जितने भी अब हमारे accounting concepts हैं, they are under some specific accounting standards. Like inventory control की बात करें तो this is under accounting standard 2, right? आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा तो अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10. So there are various accounting standard mentioned. So you have to go through about them कि accounting standards क्या है, कुछ basic accounting standards जो आपके लिए relevant है, आपके जो syllabus में topic है उनके basic जो accounting standards हैं वो कौन कौन से हैं. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस इसको हम बोलते हैं. आपने आईएफआरएस सुना होगा, इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्ट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. तो वो जो है, जो इंड एएस बनाया गया, वो आपका बेसिकली उसके पैरेलल बनाया गया. क्यों? क्योंकि हम जो है कंपेरेबल बुक्स नहीं होती थी. इंडिया में कुछ और फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कुछ और फॉलो होते थे, उसमें गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस डिफरेंट होते हैं और दूसरे जो कंट्रीज हैं वहां पर डिफरेंट होते थे. To make them at par, the IND AS have been developed. So you have to know about the basic ideas about this. Accounting process, journal, ledger, trial balance, financial statements, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, preparation of financial statements of a profit-making sole proprietorship trading firm with additional information. This is nothing but about, this is your final accounts. ठीक है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप ट्रेडिंग की बात करी जा रही है यहाँ पे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है. सो जो आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ के आए हो वही है ये वाला टॉपिक. एंड द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. जो एनपीओ आपने पढ़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. तो जो आपके प्रैक्टिकल टॉपिक है यूनिट 1 में, वो आपके दो हैं, एक फाइनल अकाउंट्स है और एक एनपीओ है. बाकी आपकी थियोरी है. ठीक है, थियोरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में एक छोटा थियोरी क्वेश्चन कई बार डाल देते हैं, राइट? सो थियोरी इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू यू. This is unit 1. Unit 2 is depreciation accounting and inventory valuation. तो इसमें बेसिकली यही वाले, इस यूनिट में यही वाले दो टॉपिक कवर हैं. तो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो मैंने अभी आपको बताया वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आता है, ये वाला टॉपिक डेप्रिसिएशन का. उसमें आपको बेसिक क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन, राइट? मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आपको सिर्फ दो मेथड पढ़ने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग मेथड, या जिसको आप रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हो. सिर्फ यही दो मेथड आपके कोर्स में है, उसके अलावा मेथड होंगे बट वो आपके कोर्स में नहीं है. चेंज ऑफ मेथड, तो ये जो चेंज ऑफ मेथड है डेप्रिसिएशन में, अगर आपने पढ़ा है कि कुछ टाइम तक कंपनी सपोज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रही है बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्ट फॉलोइंग दी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ मेथड. तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की उस पर हमारी प्रॉफिट पर या जो हमारे बैलेंसेस हैं उन पर क्या इफेक्ट आएगा वो यहाँ पर आपको पढ़ना है.
इन्वेंट्री वैल्यूएशन, सेकेंड टॉपिक इज इन्वेंट्री वैल्यूएशन, उसमें उसका मीनिंग, सिग्निफिकेंस और उसकी रिकॉर्डिंग बेसिकली। तो वो दो बेसिस पर रिकॉर्डिंग होती है, देयर आर टू बेसिस, पीरियोडिक एंड परपीचुअल, फाइन, and there are various methods to record inventory, but you have to go through only three: FIFO, LIFO and weighted average. इसके अलावा भी आपको 3-4 मेथड और मिलेंगे। आपको सिर्फ उनका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ ये 3 मेथड पढ़ने होंगे, FIFO, LIFO एंड weighted average। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके पता होने चाहिए कि अकाउंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। इन्वेंटरी वैल्यूएशन है, दिस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सो यू मस्ट हैव आइडिया अबाउट द टॉपिक्स यू आर स्टडिंग कि they are related to which accounting standard, they comes under which accounting standard, that you must know, fine. Third unit is accounting for hire purchase and lease transaction. तो ये दो टॉपिक इसके अंदर है, हायर परचेज, लीज। तो हायर परचेज में आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पढ़ना है, पार्शियल एंड फुल रिपोजेशन और प्रॉफिट कंप्यूटेशन। These are the topic that you need to cover under hire purchase. और लीज ट्रांजेक्शन में आपको जो है थियोरी क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड है। थियोरी जो आपका बेसिकली इसमें आएगा, उसका कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन, उसका सिर्फ एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज एज पर द गाइडलाइंस व्हिच हैव बीन प्रिपेयर्ड कि लीज ट्रांजेक्शन का थियोरी क्वेश्चन आपको आएगा। माइट बी कोई छोटा सा प्रैक्टिकल डाल दें, बट दिस इज नॉट इन द गाइडलाइंस। Unit 4 is branch and departmental accounting. So there are again two topics, branch accounting and departmental accounting. तो accounting for branches में आपको क्या पढ़ना है, dependent branches, जिसमें आपके दो मेथड हैं, debtor system and stock and debtor system, ठीक है। independent branches होता है, बट वो आपका प्रैक्टिकल नहीं है। आपको सिर्फ उसका थियोरी पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, बट आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो आपको डिपेंडेंट ब्रांचेस में से आएगा। और ये दो मेथड है जिसमें से किसी भी मेथड पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। सेकेंड टॉपिक इज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो उसमें आपको उसका बेसिक कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनमें जो कॉस्ट एलोकेशन करते हैं, जो एक्सपेंसेस का एलोकेशन करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऑन व्हाट बेसिस द एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये आपको उसमें पढ़ना है। और मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, तो आपको वहां पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली कि आपको सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और आपको डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंसेस निकाल के बताने हैं। टोटल एक्सपेंसेस विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू एलोकेट ऑन द गिवन बेसिस कि वो पर्टिकुलर एक्सपेंस जो है डिपार्टमेंट्स में किस बेसिस पर एलोकेट किया जाएगा और हर एक डिपार्टमेंट के टोटल एक्सपेंसेस कितने आएंगे। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल स्टडी अंडर दिस डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। This is your fifth topic, computerized accounting system. So this is not meant for actually SOL student, क्योंकि इसमें जो है basically tally पढ़ना होता है। You must be aware about tally software, ठीक है। तो tally is under this computerized accounting system. तो this is for regular students. This is not meant for you. तो आपके लिए जो relevant है वो आपका जो और इसका पार्ट है जो optional है, optional in the sense जो इसका चॉइस वाला पार्ट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आपको इसमें से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसमें से ना आपको कोई थियोरी आएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में से नहीं आएगा। आपको इसमें बेसिकली डिसोल्यूशन पढ़ना है। जो आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर है, दैट इज ओनली फॉर स्टडी, दैट इज ओनली टू रीड। उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें से आएगा, दिस इज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। उसमें आपको इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर भी पढ़ना है, ग्रेजुअल रियलाइजेशन ऑफ एसेट एंड पीस मील पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये तीन चीज आपको पढ़नी है। और इस अकेले यूनिट की वेटेज जो है वो 20 मार्क्स है, क्योंकि वो जो हमने ऊपर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम हमने पढ़ा है, जो टॉपिक जो आपको नहीं आ रहा है वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता था। तो उसकी जगह आपको ये अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म टॉपिक आता है और इसकी वेटेज 20 मार्क्स की होती है। बट यू नो OBE आर गोइंग ऑन, ओपन बुक एग्जामिनेशन जो है वो चल रहे हैं, तो इसमें थोड़ा एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज हो गया है। फाइन, तो इसमें आपको देखो क्या गाइडलाइन दी है, थियोरी एक्सटर्नल एग्जाम शैल कैरी 75 मार्क्स एंड विल बी ऑफ 3 आवर्स। तो आपका जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का आता है।
फाइन। अगर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम होता है तो उन बच्चों का जो रेगुलर की मैं बात करी उनका तो 55 मार्क्स का ही होता है, बट आपके पास नहीं है तो आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर, और उसमें आपको इन 5 यूनिट में से क्वेश्चंस आएंगे। फाइन। तो इसमें आपके जनरल एग्जाम, अब ओबीई में ओपन बुक एग्जामिनेशन में कैसा होता है कि यू विल गेट 6 क्वेश्चन इन टोटल एंड आउट ऑफ दोज यू नीड टू अटेम्प्ट एनी 4। पहले क्या होता था, आपको जनरली 5 क्वेश्चन आपको मिलते थे उसमें, और इंटरनल चॉइस होती थी। क्वेश्चन 1 में ही आपको चॉइस दी जाती थी, क्वेश्चन 2 में इंटरनल चॉइस होती थी, बट ओबीई में देयर इज ओपन चॉइस, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस। ठीक है, so I have given you the basic overview. If you have any doubt regarding this, any examination pattern, any doubt regarding syllabus, please do write in the chat box. Then we'll start with the unit that we need to follow today. One second. Beta, you can write any doubt of yours in the chat box. जो आपका QA tab आपका होगा, I'll keep checking on that. The recorded video, I have no idea. You can ask from the SOL helpline. They'll guide you regarding that. You can attend any class of your choice. Notes बेटा, ये आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर है तो इसके लिए आई हैव नॉट प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ नोट्स, आई विल डू क्वेश्चन ऑन बोर्ड ओनली। ठीक है, सो तो बेसिक ओवरव्यू आपको मिल गया टॉपिक्स का। तो इसमें जो आपके फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं, बुक आप जो इसके लिए which Khushbu, you are talking about which notes beta? These are not notes, this is the syllabus only that you will get on the SOL website. I am talking about book, I'll refer you. सिलेबस पूरा आएगा, एग्जाम सिलेबस, ये एग्जाम सिलेबस ही मैंने आपको बताया, यू विल गेट इट ऑन दी SOL वेबसाइट। Yes, I'm able to see your queries. Books, I am recommending you बुक्स। तो इसके लिए आप जो बुक्स ले सकते हो वो आप BK गोयल, ठीक है, आपकी जो होगी बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी, क्योंकि ऑनर्स के लिए अलग बुक है, प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए अलग बुक है। तो प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से बुक मिलेगी। अगर सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, दैट इज मेंट फॉर दी ऑनर्स स्टूडेंट, बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और बीकॉम प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुक होती है। तो यू कैन रिकमेंड ऑफ BK गोयल, JR मोंगा, इनमें से आप कोई भी ले सकते हो, या एक भूपेंद्र सर की बुक आती है वो आप इसके लिए रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है, आई हैव टोल्ड यू 3 ऑथर्स, BK गोयल, JR मोंगा। I'll write on the board as well. When I'll start doing the question, I'll write it on the board as well, the name of the authors, और भूपेंद्र सर, ठीक है, लेफ्टिनेंट भूपेंद्र के नाम से ये 3 बुक्स आपको मिलेंगी। तो यू कैन रिकमेंड एनी ऑफ द बुक्स। इसके अलावा SOL का मटेरियल आपका वेबसाइट पे होगा, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। फाइन। और 10 years यू हैव ऑल्सो हैव 10 years, तो उसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस का आइडिया हो जाएगा। प्रैक्टिस के लिए आप इनमें से कोई भी बुक ले लेना। Book distribution, I don't know beta ki in COVID period whether they are distributing the books or not, but that will be available online. Syllabus भी आपको SOL की वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो आई डोंट नो स्टडी मटेरियल अब आपको फिजिकली बुक्स आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। फोन में काम नहीं कर रहा, यू नीड टू रीइंस्टॉल इट। I don't have any idea about your WhatsApp group, so you need to talk about it yourself with your friends and all.
बुक आपका ग्रुप कोई ऑलरेडी बना हुआ है, कल एक मेरे बच्चे के साथ कन्वर्सेशन हुआ था, तो यू ऑलरेडी हैव अ ग्रुप, सो यू नीड टू फिगर आउट कि वो ग्रुप कौन सा है। हाँ, ये जो सिलेबस मैंने आपको बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर जो आपके मार्च में एग्जाम्स होने हैं, आई थिंक शेड्यूल आपके मार्च में या अप्रैल में, आई डोंट नो, अप्रैल में भी होते, अप्रैल में हैंग होंगे शायद, ठीक है। सो यू नीड टू कंफर्म, डेट शीट आएगी एसओएल वेबसाइट पे आएगी, तो आप चेक करना, मार्च से चेक करना शुरू कर देना बेटा। एट प्रेजेंट सिचुएशन यू नो कोविड सिचुएशन इज वेरी वर्स्ट इन द दिल्ली अगेन, सो एट प्रेजेंट ओबीई ही होगा, बट उस टाइम तक अगर सिनेरियो ठीक हो गया फिजिकल मोड के लिए, अगर सब प्रिपेयर हुए तो फिजिकली भी हो सकते हैं। तो स्टार्ट टुडे। आई एम थ्योरी चैप्टर्स जो हैं आपको बुक में जो मिलेंगे, फर्स्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन टीम्स, जो मेरा टीम्स आईडी है, आपकी कोई भी क्वेरीज है आप उसके ऊपर क्वेरीज डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई देयर, ओके। एग्जाम्स की टेंशन मत लो, आपकी योर क्लासेस हैज जस्ट बिगिन, सो जस्ट डोंट थिंक अबाउट एग्जाम राइट नाउ, जस्ट कॉन्सेंट्रेट on your studies right now, because पहले topic पढ़ो समझो, then think about the exams, don't take too much stress, fine। Yes, this is class of financial accounting। So I was talking about कि यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं थियोरी चैप्टर्स है जो मैंने आपको बोला, तो थियोरी चैप्टर्स you need to do it by yourself, because you know we have very limited classes, we have 20 classes allotted only, we have lot of practical chapters to do, so I'll not go for theory, you study it by yourself, if you have any doubt you can contact me on teams, teams में जो मेरा ID है आप अपनी queries वहाँ डाल सकते हो, whenever I'll get time I'll definitely reply on those queries, fine। So today I am going to start with the very basic chapter final accounts। फाइनल अकाउंट जो है आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, तो आपको बेसिक आइडिया है फाइनल अकाउंट्स के बारे में, ठीक है। तो उसका बेसिक हम क्या कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स, तो हमने जो पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स आर जस्ट प्रिपेयर्ड बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। कंपनी फॉर्म जो है ये हमारा फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं करती, उसके लिए हमारी अकाउंटिंग डिफरेंट होती है जिसको हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज प्रिपेयर बाय द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, और हम इसको फाइनल अकाउंट्स क्यों बोलते हैं, व्हाई वी कॉल इट फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज ये जो है दीज आर मेड एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है उसके बाद ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं, टू नो द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द फर्म एट द क्लोजिंग ऑफ द पीरियड, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग पीरियड्स बने हुए हैं, तो हर अकाउंटिंग पीरियड के बाद उस टाइम पर उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, फाइनेंशियल पोजीशन आइडेंटिफाई करना, कि इस टाइम कंपनी जो भी उनकी फर्म है उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, या उनके जो एक्सपेंसेस हैं कितने एक्सपेंसेस इन ऑल दे आर बियरिंग, तो उसके बारे में वो पता करना, ये बेसिकली फाइनल अकाउंट्स का पर्पस होता है। सो यू नो कि इसमें जो है आपको यू हैव टू प्रिपेयर 3 स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, राइट। सो आई एम शेयरिंग अ PDF हियर, एक मिनट। So this is the PDF created from BK Goyal book। इसमें आपको बेसिक ये कंसेप्ट मिला हुआ है। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट यू ऑल नो, अभी तो हम कंबाइंड अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट पे हम कौन सी इंफॉर्मेशन डालते हैं, इन ट्रेडिंग अकाउंट वी यूज टू शो द स्टॉक्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग, परचेजेस, सेल्स एंड ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में जो हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन हम शो करते हैं उसमें हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमने टोटल नेट परचेजेस हमारी कितनी है, नेट सेल्स कितना हुआ, और सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, द एक्सपेंसेस विच हैव बीन इनकर्ड व्हाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अगर जो कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो वो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उस गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए उसने जो भी कॉस्ट बियर की है विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट प्रोडक्शन, तो दैट कॉस्ट इज नोन एज
दैट कॉस्ट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, जिसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे वेजेस आता है, तो यू फाइंड टू टर्म्स, वेजेस एंड सैलरीज। तो सैलरीज आर गिवन बेसिकली टू वाइट कॉलर पीपल्स, ठीक है, जो आपने बेसिक तो पढ़ा होगा, आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग योर फाइनल अकाउंट्स। तो आपका जो है फाइनल अकाउंट सम सॉर्ट ऑफ उसी टाइप का है, बस यहाँ पर एडजस्टमेंट्स जो आपने पढ़ी हैं, एडजस्टमेंट्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी, बाकी बेसिक पैटर्न वही है। तो इसमें आपकी, जैसे मैंने बोला, वेजेस आती हैं, तो वेजेस आर यूजुअली गिवन टू द लेबर्स, वो लेबर्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं, वो लोग जो प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, उनको यूजुअली वेजेस प्रोवाइड की जाती हैं। और सैलरीज जो है वो वाइट कॉलर पीपल को यूजुअली प्रोवाइड की जाती हैं, द पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस, जो उसका कोई ऑफिस होगा, फ्रंट ऑफिस होगा जिसको हम बोलते हैं, तो वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। तो वेजेस जो है लेबर को प्रोवाइड की जा रही है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो यहाँ पर आता है। इसके अलावा फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर इज द टर्म बेसिकली यूज्ड फॉर दी मशीनरी, जो फ्यूल पावर, जो वहाँ पर मशीनरी जो इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करती है उसको हम पावर बोलते हैं। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर कि लाइक ट्यूबलाइट्स चल रही हैं या फैन चल रहे हैं, एसी चल रहा है, तो वो बेसिकली ऑफिस में वो वाली जो टर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी, वो वहां पर यूज होती है। जो फैक्ट्री होती है, जो एक्सपेंसेस फैक्ट्री में बियर किए जाते हैं, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स, तो यहाँ पर स्पेसिफिकली फैक्ट्री मेंशन है, तो इसलिए ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आया। अगर आपको सिर्फ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस इस तरीके की टर्म मिलती है, तो दैट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द फैक्ट्री, तो दैट वी यूज टू शो इन दी P&L अकाउंट। फ्रेट ऑन परचेजेस, कि आपने जो परचेजेस की है, जैसे इसको या तो कैरियज इनवर्ड्स भी बोल देते हैं, फ्रेट भी बोल देते हैं, अलग अलग एक्सपेंसेस होते हैं। तो जनरली की जो परचेजेस की है उसको अपने प्लेस तक लाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस बियर किए जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारे फ्रेट, कैरियज इनवर्ड्स होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो दीज आर दी बेसिक एक्सपेंसेस जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो ये फॉर्मेट सिर्फ मैं आपको शो करना चाह रही थी। इसके अलावा दूसरा अकाउंट जो हम बनाते हैं, जब उसमें हमारा आउटपुट क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, राइट, जो हम फिर ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट शोज ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, विच आर नॉट, मतलब द फर्म इज बियरिंग दोज एक्सपेंसेस बट एक्सपेंसेस आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है कि लाइक इनवॉइस बिल्स प्रिंट कर रहे हैं, मशीनरी का रिपेयर हो रहा है, मेंटेनेंस हो रहा है, तो इस तरीके का, या और कोई ऑफिस में कुछ तोड़फोड़ हो गई है, वहां पर उसका कुछ रिपेयर किया जा रहा है, ऑडिट फीस जो है, तो दीज काइंड ऑफ एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसी तरह इनडायरेक्ट इनकम जो भी है, कि हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, हम डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, रेंट हमारा आ रहा है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल हमारा है, तो वो सारे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। और बैलेंस शीट तो यू ऑल नो कि हमारे सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज, एवरीथिंग वी यूज टू शो इन दी बैलेंस शीट। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक आइटम्स हैं, जैसे उसका हमें क्या ट्रीटमेंट करना है बेसिकली, ये यहाँ पर आपको कुछ बताया हुआ है। जैसे कि डिस्काउंट होता है तो आपको डिस्काउंट अलाउड भी मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी मिलता है। तो कई बार हम सोचते हैं जब दोनों डिस्काउंट है तो हम उसको एक साथ ही रिप्रेजेंट कर दें कि डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपस में एडजस्ट करके सिर्फ डिस्काउंट शो करें, तो ऐसा नहीं करना है। डिस्काउंट अलाउड will be written as expense, discount received will be shown in the income account separately। तो यही कुछ बेसिक चीजें हैं कि रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, तो ये दो अलग अलग चीज है। तो रेंट रिसीव्ड आप इनकम ही दिखाओगे, रेंट पेड आप एक्सपेंस ही दिखाओगे, तो इस तरीके का ट्रीटमेंट है। इनकम टैक्स पे किया जा रहा है, तो इनकम टैक्स यूजुअली जो प्रोप्राइटर है वो अपना पर्सनल टैक्स पे करता है, तो इट शुड नॉट बी दी पार्ट ऑफ दी फर्म, तो वो उसकी ड्राइंग्स का जो है वो पार्ट होना चाहिए, वो फर्म के अकाउंट से पे नहीं होगा। तो दीज काइंड ऑफ पॉइंट्स आर गिवन देयर। दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सारे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स दिखाते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट आती है, स्टॉक, एंड देन आर करंट एसेट्स। इसी तरह हमारा लाइबिलिटी साइड पर हमारी कैपिटल आती है, रिजर्व्स, लोन्स हमारे जो भी हैं, और फिर हमारी सारी करंट लाइबिलिटीज।
So let us quickly start with this question. ये क्वेश्चन जो है मैं बोर्ड पर कराऊंगी आप लोगों को, तो इट्स बेटर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट. आई विल मिनिमाइज द स्क्रीन सो दैट यू कैन टेक अ बेटर व्यू ऑफ इट. आई एम गिविंग यू 10 seconds. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन जो है हम अभी शुरू करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का. ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं फिर स्क्रीन शेयरिंग ये जो है बंद कर दूंगी एंड आई विल ओपन माय वीडियो. So I'll do it on the board. So I will not able to share it then. So you have to take screenshot of this question. I hope you have taken it. And this is the rest part. Yeah. This is the rest of the question. I hope you have taken the screenshot. Take screenshot of this question. Then we'll start doing it. Okay, first I will discuss the question, then I will do it on the board. So I'm author beta मैंने आपको बताया, I'll write on the board as well. Don't take stress about your exam. पेपर का ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, प्लीज गो थ्रू इट. कैरिएज इनवर्ड इज योर डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि कैरिएज इनवर्ड मतलब कि आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा उस रॉ मटेरियल को अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए आप जो एक्सपेंस बियर कर रहे हो, दैट इज योर कैरिएज इनवर्ड. Carriage outward is what? When your product have been made, मतलब it is the finished product and you are sending it to the retailers or you are sending it to other places. This is called carriage outward. तो वो आपके production process का part नहीं होता carriage outward. So carriage outward we show in the profit and loss account. Carriage inward we show in the trading account. Yes, format आपका बिल्कुल same है जो आप 12th में पढ़ के आए हो. ठीक है, बस इसमें जो आपको डिफरेंस आएगा वो एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं आपकी. इसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज आपको पता है होती हैं. ठीक है, तो आपको सिर्फ you will able to see when I'll stop sharing, when I'll remove my background, you will able to see the board. So I'm removing my background. Give me a second. I hope you are able to see board now. So I'm writing authors here. B.K. Goyal, J.R. Monga, these are the books that you can recommend for this financial accounting paper. ठीक है, अब एक क्वेश्चन को, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है इसमें फटाफट से देखो. ये आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. मिस्टर अंकित जो है, मिस्टर अंकित का आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस दिए हुए हैं. ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, कैरिएज इनवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड, वेजेस, सैलरीज, फर्नीचर, मशीनरी, कैश इन हैंड एंड बैंक, डेटर्स, rent, rates and taxes, insurance, bad debts, drawings, sundry expenses, discount allowed. These are the various debit balances given to you. और credit balances में आपको क्या दिया हुआ है? Capital, creditors, 10% बैंक लोन. तो यहाँ पर आपको जो है बैंक लोन कब लिया है उसकी डेट मेंशन है. तो इसका क्या रेलेवेंस है यहाँ पर? We have to calculate interest on loan. ठीक है, अगर आपको लोन के साथ अगर हमेशा आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यू हैव टू कैलकुलेट
rate of interest, or always you have to calculate total amount of interest to be paid on loan. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पीरियड मेंशन है कि लोन कब लिया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट. अगर आपको डेट मेंशन नहीं भी होती है, आपको सिर्फ लोन अमाउंट दे दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, बट डेट मेंशन नहीं किया कि किस डेट पर लोन लिया है, इन दैट केस यू विल फाइंड बोथ केसेस. किसी किसी बुक में आपको मिलेगा कि पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है, या किसी बुक में आपको मिलेगा कि 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है. तो आप वहां पर एक फुट नोट दे दोगे, एक नोट वहां पर रेकमेंड कर दोगे कि यू आर अज्यूमिंग लोन हैज बीन टेकन इन मिडल ऑफ द ईयर और इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर. जनरली जो हमारा बहुत इजीली आपको मिलेगा वो मिडल ऑफ द ईयर मिलेगा, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस डेट पर बुक शुरू की पहले दिन ही लोन ले लिया. तो कई बार अजम्पशन ये होती है कि इन बिटवीन द ईयर लोन लिया गया है, तो वो मिडल ऑफ द ईयर जो है वो इजीएस्ट होता है. ठीक है, तो अगर आपको डेट मेंशन नहीं है तो उस केस में आप अजम्पशन लोगे और उसका आप नोट वहां पर मेंशन कर दोगे. फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स, परचेज, रिटर्न, वेजेस आउटस्टैंडिंग, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, डिस्काउंट रिसीव. सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रायल बैलेंस. अब एडजस्टमेंट्स प्लीज देखिए, आपको ये पता ही है, आप पढ़ के आए हो कि हर एक एडजस्टमेंट्स की जो है, जो भी एडजस्टमेंट यहाँ पर होगी, उस हर एक एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज हमें करनी होती है ना. मेरे पास बीके गोयल है एट प्रेजेंट. आई एम हैविंग बीके गोयल इन माय हैंड, जिससे मैं ये क्वेश्चन ये करा रही हूँ. तो इसमें आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट जो दी है, क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31 मार्च 2016 वाज 11,000. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की आपकी एक एंट्री तो कहाँ पर होगी, आप क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, और दूसरा आप उसको एसेट साइड. Closing balance we show at 2 places, one in trading account and the other one is at asset side on the in the balance sheet. Second is, अगर आपको suppose closing stock if you find it in the trial balance, यहाँ तो हमें adjustment most of the time you will find closing balance, closing stock at the in the adjustments only, but if you find it in the trial balance then it means you have to place it at one place only. तो उस केस में हम उसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में. ठीक है, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, परचेजेस में क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्टेड है. फाइन, तो उस केस में जो हमारा अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो हम सिर्फ जो है एसेट साइड पर दिखाएंगे बैलेंस शीट में. फिर आपको सेकंड दिया है, गुड्स विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ₹1,000 नॉट येट एडजस्टेड. सो दिस इज व्हाट, प्रोप्राइटर ने गुड्स को विथड्रॉ कर लिया और उसकी अभी तक कोई एंट्री नहीं किया. बोर्ड पर सब उल्टा दिख रहा है, सीरियसली आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं जब पढ़ाती हूँ तो मुझे ऐसे किसी ने कंप्लेन नहीं किया उल्टा दिख रहा है. सो व्हाट शुड आई डू? मिरर तो नहीं है बेटा. आई विल शो सिलेबस एट द एंड. ओके, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आप लोग उसको कर भी लोगे. फाइन, तो गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज ड्राइंग. तो इसकी क्या एडजस्टमेंट होगी हमारी, क्या एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, ड्राइंग है. तो ये जो 1,000 है, क्योंकि अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ है, तो गुड्स विथड्रॉन हुए हैं, तो सबसे पहले कहाँ से एडजस्ट होगा, परचेजेस में से. उतनी वैल्यू के, जब प्रोप्राइटर ने गुड्स विथड्रॉ कर लिए तो उतनी वैल्यू के गुड्स जो है हमारे माइनस हो जाएंगे परचेजेस में से, और बाकी ये हमारी जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पर ड्राइंग्स हम दिखाते हैं, तो ड्राइंग्स में ये जाकर ऐड हो जाएंगे. फाइन. इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ₹500. प्रीपेड इंश्योरेंस है तो P&L अकाउंट में इंश्योरेंस में एडजस्ट कर देंगे कि जितना हमें टोटल पे करना है उसमें से जो प्रीपेड है वो माइनस हो जाएगा. और दूसरा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एसेट्स. कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस है तो वो हमारा एसेट होता है, तो दैट विल बी shown in the asset side of the balance sheet.
फिर है सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड ₹290। सन्ड्री एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है तो जो हमारे P&L अकाउंट में सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं उसमें ऐड हो जाएगा और all outstanding expenses should be added in their respective head। और जो outstanding expense है वो हमारे क्या होती है, liability, so it should be shown in the liability side। This is my first class of financial accounting, right? फिर है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड ऑन मशीनरी एट 10% per annum। फर्नीचर और मशीनरी दोनों पर सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लिया है 10%, तो डेप्रिसिएशन उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में हम कैलकुलेट करके माइनस कर देंगे। अच्छा, आई शुड स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। तो डेप्रिसिएशन उनके रिस्पेक्टिव हेड्स में से माइनस हो जाएगा एसेट साइड पर, राइट? और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है तो P&L अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हम इसको शो करेंगे। I'll solve it. I'm just discussing it first, then I'll solve it definitely. फिर है राइट ऑफ फर्दर बेड डेट्स ₹1000। कुछ बेड डेट्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, उनके अलावा फिर एट दी एंड कुछ फर्दर बेड डेट्स वहां पर क्रिएट हो गए, तो एक एंट्री क्या होगी, जो आपके P&L में आप बेड डेट्स शो कर रहे हो उसमें ये एडिशनल बेड डेट्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है? और बैलेंस शीट में डेटर्स में जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट्स है वो तो ऑलरेडी एडजस्टेड है, ये जो फर्दर बेड डेट्स हैं, फर्दर बेड डेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द डेटर्स इन द बैलेंस शीट। बेटा सुमित, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। मैंने अभी एक क्वेश्चन आपको शो किया था, उसका मैंने बोला था स्क्रीनशॉट लो, और उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। सीधा सॉल्व इसलिए नहीं कर रही क्योंकि सीधा सॉल्व करूंगी तो समझ नहीं आएगा, सो आई एम स्टार्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन देन आई विल सॉल्व इट। क्रिएट प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट्स एट 3% ऑफ डेटर। प्रोविजन क्रिएट करना है तो प्रोविजन हमेशा नेट डेटर्स का क्रिएट किया जाता है, तो नेट डेटर्स आफ्टर एडजस्टिंग फर्दर बैड डेट्स, या उसके अलावा अगर डेटर्स में कोई भी एडजस्टमेंट आपको दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू रेस्ट ऑफ द एडजस्टमेंट्स, उसके बाद जो भी आपके नेट डेटर्स आएंगे उन नेट डेटर्स का प्रोविजन जो है हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडिशनल बैड डेट्स दिए हुए हैं, तो एडिशनल बैड डेट्स पहले आप डेटर्स में से माइनस कर दोगे, वो आपके नेट बैड डेट्स हो जाएंगे, नेट डेटर्स हो जाएंगे। उन डेटर्स का 3% आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। स्टार्ट प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो आप बनाना शुरू करिए। Take your registers and pen and start doing this question side by। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में द फर्स्ट थिंग वी शो इज ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। बेटा अगर बोर्ड के साथ इश्यू आ रहा है तो आई एम डिक्टेटिंग साइड बाय, यू कैन डू इट। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में 17,000, ठीक है? फर्स्ट थिंग वी शो इन ट्रेडिंग अकाउंट इज टू ओपनिंग स्टॉक, द वैल्यू इज 17,000। देन वी हैव टू टेक परचेजेस, तो यहाँ पर आएगा टू परचेजेस। परचेजेस हमें दिया हुआ है 55,000। इसमें हमें क्रेडिट जो हमारे बैलेंसेस हैं, क्रेडिट बैलेंसेस में परचेज रिटर्न इज गिवन टू अस, सो वी विल माइनस परचेज रिटर्न। रिटर्न आपको दिया हुआ है 8,000, तो इट विल बी डिडक्टेड 47,000। इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग, जो हमें एडजस्टमेंट में दी थी कि प्रोपराइटर ने गुड्स विड्रॉ किए हैं ऑफ ₹1,000, so it would be deducted from the purchases 1,000, so your net purchases is 46,000. This is your net purchases, fine.
नाउ जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। तो हम डेबिट साइड देखेंगे, ये वाली जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, इसमें हमें एक मिल रहा है कैरिएज इनवर्ड। कैरिएज इनवर्ड आपका यहाँ पर आएगा, कैरिएज इनवर्ड की वैल्यू है 1500। फिर आपको दिया हुआ है वेजेस, तो वेजेस आपको दी हुई है 10,000। वेजेस के अलावा और कुछ हमें यहाँ पर नहीं दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अलावा और नहीं है। तो ये डेबिट साइड कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आएगा बाय सेल्स। सेल्स हमें दी हुई है 1,10,000। इसमें माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न जो हमें दिया हुआ है। सेल्स रिटर्न्स आर 5,000। सो नेट बैलेंस इज 1,05,000। नेट सेल्स जो आपकी हुई 1,05,000 की नेट सेल्स आपकी हो गई। ठीक है, देन यू विल राइट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है दैट इज ऑफ ₹11,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस यही वाले आपके बैलेंसेस आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, इसके अलावा। ट्रेडिंग अकाउंट में इसके अलावा आपका और कोई बैलेंस नहीं आएगा, तो यहाँ पर इसको हम नेट नेट निकाल देंगे। यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट हियर। मैंने बेटा बी के गोयल ली है, इस टाइम मेरे पास बी के गोयल है। बेटा मेरा जो बोर्ड है, मैं दूसरी क्लासेस भी लेती हूँ, इसी तरीके से पढ़ाती हूँ, बट दिस काइंड ऑफ क्योर्स आई हैव नॉट फेस्ड अर्लियर। सारी कैलकुलेशंस आप टेबल में कर सकते हो, नहीं तो आप इसके लिए, इसमें हमें नोट्स टू अकाउंट्स तो नहीं बनाना होता, आप इसके लिए या तो वर्किंग नोट बना लो। ठीक है, अपने फॉर्मेट बना लो पहले, यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो एंड गो फॉर वर्किंग नोट्स। बेटा आई एम डिक्टेटिंग साइड बाय, मैं आपको डिक्टेट भी कर रही हूँ, क्वेश्चन आपके पास है। बोर्ड उल्टा आई थिंक नहीं दिखना चाहिए, आप कुछ कैमरे की एडजस्टमेंट करो, आई थिंक देयर शुड बी सम इशू इन दैट। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये किसी बच्चे ने बनाया है, तो आई एम पब्लिशिंग इट। तो ये आपको आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं, इसमें ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों ने निकाला होगा। वेजेस आउटस्टैंडिंग इज नॉट गिवन टू अस, देयर इज नो वेजेस आउटस्टैंडिंग। ये जो आपको वेजेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है वो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है मतलब इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन योर वेजेस। ट्रायल बैलेंस के जो भी बैलेंसेस होते हैं वो सिर्फ आपके एक जगह आप शो करते हो, आउटस्टैंडिंग वेजेस इज योर लाइबिलिटी। ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं या जो भी आपकी इनकम है दैट यू कैन शो ओनली एट वन प्लेस। तो अगर वेजेस आउटस्टैंडिंग है, अगर हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ होता तो इट विल बी हैविंग टू एंट्रीज, एक तो हम वेजेस में एडजस्ट करते हैं, उसको वेजेस में ऐड कर देते, और दूसरा हमारा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी होती। तो यहाँ पर क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया है, इट मीन्स एक एंट्री वो ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इट मीन्स इट हैज ऑलरेडी एडजस्टेड इन दी वेजेस, वो वेजेस में ऑलरेडी एडजस्टेड है तो उसको दोबारा से एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के आप लोगों ने चेक किया ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है इसमें।
Has anyone calculated gross profit? अच्छा, you can use calculators in your exam. आपको फाइनेंस जो भी आपके प्रैक्टिकल पेपर है उसमें आपको सिंपल कैलकुलेटर्स जो है वो अलाउड होते हैं, तो अब आपको मैनुअल कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स जो है बेटा, ड्राइंग्स प्रोप्राइटर की अपने पर्सनल जो होती है, वो बिजनेस में से वो कुछ भी चीज ले रहा है तो वो उसके पर्सनल ड्राइंग है, तो उसके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो दैट विल बी एडजस्टेड इन हिज अकाउंट। तो अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है तो गुड्स विड्रॉ करने से क्या हो रहा है कि जो भी बिजनेस का मटेरियल है, जो भी बिजनेस की परचेजेस है वो कम हो गई, so it should be shown at appropriate place, that is the drawing, so it should be shown in drawings only। तो अल्टीमेटली इफेक्ट परचेजेस पे, गुड्स तो कम हो गए तो दैट यू आर शोइंग कि परचेजेस में से गुड्स हमने रिड्यूस कर दिए, उतने वो लेके चला गया। दूसरा क्या है, उससे उसकी ड्राइंग्स जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो यू विल ऐड दैट अमाउंट इन हिज ड्राइंग। तो वेरी गुड, ग्रॉस प्रॉफिट इज, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर कैलकुलेट आपने किया तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 41,500। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 41,500। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसके नीचे हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वी विल ट्रांसफर इट हियर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 41,500। अब बाकी जो भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन में आप देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको कौन कौन से दिए हुए हैं, कैरिएज आउटवर्ड, वन बाय वन जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दोगे। सबसे पहले दिया हुआ है कैरिएज आउटवर्ड, कैरिएज आउटवर्ड का अमाउंट है 2000। फिर उसके बाद वेजेस आप ले चुके हो, अब आएगा सैलरीज। सेकंड expense is salaries, salaries is 18,000। फर्नीचर और मशीनरी हमारे एसेट है, बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश इन हैंडेड बैंक एसेट है, डेटर्स एसेट है। फिर है रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, तो क्योंकि इसके आगे फैक्ट्री मेंशन नहीं है तो इसलिए ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। तो टू रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, वो आपका हो गया 3200। फिर है इंश्योरेंस, यहां पर अगर लाइफ इंश्योरेंस होता, ठीक है, ये तो सिर्फ इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस स्पेसिफिक नहीं बताया किसका है, तो इसलिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है। बट अगर यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस दिया हुआ होता तो फर्म का लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पर्सन का होता है, मतलब वो प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस होता, तो वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होता। तो यू हैव टू कीप इन माइंड लाइफ इंश्योरेंस शुड नॉट बी शोन इन this trading and profit and loss account, this is the personal expense of the proprietor। तो इंश्योरेंस आपको दिया हुआ है 2000। फिर आपको दिए हैं बैड डेट्स, बैड डेट्स है 1000, और फिर इन्होंने कहा था कुछ हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर आएगा फर्दर बैड डेट्स 1000 एडिशनल है, तो टोटल हो गए 2000। सॉरी, इंश्योरेंस आपका 2000 है, यहाँ पर एक एडजस्टमेंट दी हुई है, इंश्योरेंस प्रीपेड एट द एंड ₹500। इंश्योरेंस प्रीपेड है तो प्रीपेड इंश्योरेंस यहाँ से माइनस कर देंगे, 500 रुपए का हमारा इंश्योरेंस प्रीपेड है, तो दैट विल बी डिडक्टेड हियर, सो नेट इंश्योरेंस टू बी पेड इज 1500। ठीक है, इसके बाद है बैड डेट्स, बैड डेट्स आपको दिए हुए हैं 1000, इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स जो 1000 ही है, तो टोटल हो गए 2000 बैड डेट्स। बैड डेट्स के बाद ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स हमारी बैलेंस शीट में आती हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस वो आपको दिए हुए हैं 3000।
इसमें ऐड कर देंगे जो आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंसेस एट द एंड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 290, तो टोटल आपका हो गया 3290। फिर आपको दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड इज हाउ मच? 2000। ट्रायल बैलेंस में जितने एक्सपेंसेस थे सारे एक्सपेंसेस आपने यहाँ पर शो कर दिए। ड्राइंग्स के नीचे मैंने लिखा है टू कैरिएज इनवर्ड। 41,500 है ज्योति बेटा। 41,500 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। प्लीज चेक जिनका 41,500 नहीं आ रहा, मैक्सिमम आर गेटिंग 41,500। दोज हु आर नॉट गेटिंग प्लीज चेक। Question I'll share again beta, but in between I cannot. So at the end you please note down this solution. मैं क्वेश्चन आपको शो कर दूंगी। Yes, you can use calculator in offline exams. In your undergraduate exams, you can use simple calculators. Scientific calculators will not be allowed, but simple you can. You cannot take 2 classes, beta. You can attend only one. Anyone. कैरिएज इनवर्ड होता है कि जब आपने परचेजेस की, आपने रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आप जहां से आप खरीद रहे हो उसको अपने प्लेस तक तो लाओगे, लाइक फैक्ट्री में आपको वो लेके आना है, तो वहां लाने के लिए जो आप एक्सपेंस पे कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज में रख के ला रहे हो आप, तो वो जो आप उसका किराया पे करोगे, सपोज टेम्पो में आप उसको रख के ला रहे हो तो आपने उसके लिए कुछ रेंट उसके लिए पे किया होगा, उसका कुछ अलाउंस पे किया होगा, वो जो एक्सपेंस है दैट इज योर कैरिएज इनवर्ड। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है, इट इज 41,500। चलो यहाँ तक हो गया डिस्काउंट अलाउड तक। तो जितने हमारे ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस थे, वी हैव टेकन ऑल दी एक्सपेंसेस। अब हम एडजस्टमेंट्स में देखेंगे। एडजस्टमेंट में हमारे कौन सा रह गया एक्सपेंस? डेप्रिसिएशन। एक तो हमारा डेप्रिसिएशन रह गया, वो कैलकुलेट करेंगे। टू डेप्रिसिएशन, तो दो एसेट है यहाँ पर आपके, मशीनरी और फर्नीचर, दोनों पे 10% डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है। तो पहले ले रहे हैं मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू है हमारी 70,000, तो 70,000 का 10% हुआ आपका 7,000, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज 7,000। और उसके बाद है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू है आपकी 20,000, तो इस पे 10% डेप्रिसिएशन 2,000, टोटल डेप्रिसिएशन आपका आ गया 9,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन के बाद इसमें हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन के बाद है हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो उन्होंने हमें 3% क्रिएट करने के लिए बोला है। डेटर्स हमारे कितने दिए हुए हैं? 18,000, जिसमें से 1,000 जो फर्दर बैड डेट्स थे वो माइनस कर देंगे। इसका 3% हमें लेना है प्रोविजन के लिए, तो ये कितना हुआ? 510 इज द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स। अब क्वेश्चन में देखो और क्या रह गया। आप क्रेडिट साइड पर जाते हैं, सारे एक्सपेंसेस तो हमने लिख दिए, अब इनकम कुछ अगर हमें दी हुई है तो वो लिख देंगे। क्रेडिट साइड पर आपको क्या दिया हुआ है? कैपिटल क्रेडिटर्स। देखो 10% बैंक लोन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, तो आपका टोटल बैंक लोन है 10,000, उस पे इंटरेस्ट पे करना है 10%। फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 6। अक्टूबर में क्योंकि लोन लिया है,
तो 10,000 पे 10% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो वो हमारा आ जाएगा 500। इंटरेस्ट के लिए हमेशा ये याद रखना, अगर आपको ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट पेड अगर कहीं भी शो नहीं हो रहा है, इट मींस इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है, और इंटरेस्ट पे नहीं किया गया है तो दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लोन दिया हुआ है तो यू विल कैलकुलेट इंटरेस्ट टू बी पेड ऑन लोन। तो अगर इंटरेस्ट पेड का आपको ट्रायल बैलेंस में कुछ भी मेंशन नहीं है, मतलब होल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज अनपेड and you will write it as unpaid expense in the liability side of your balance sheet. कई बार आपको क्या होगा, इंटरेस्ट पेड आपको दिखाएंगे बट उसमें कंप्लीट इंटरेस्ट पे नहीं किया हुआ होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि सपोज 3,000 का इंटरेस्ट आपका आप कैलकुलेट कर रहे हो तो 3,000 आ रहा है, बट इंटरेस्ट पेड कितना दिखा रहे हैं, 2,000। ठीक, तो इसका मतलब 3,000 में से 2,000 तो पे किया बट 1,000 अभी भी बाकी है। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपका आएगा वो आप फिर बैलेंस शीट में 1,000 आप आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट दिखाओगे। तो लोन के इंटरेस्ट कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है। फाइन। फर्दर बेड डेट्स इज ₹1,000। अगर डेटर्स आपके ट्रायल बैलेंस में भी हैं और आपके एडिशनल एडजस्टमेंट में भी हैं तो वो मतलब और डेटर्स आपके आ गए तो वो आपके क्या होंगे, आपको कभी भी डेटर्स एडजस्टमेंट में नहीं मिलेंगे, आपको हमेशा ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा। एडिशनल डेटर्स हमारे होते भी हैं तो हम उसको डेटर्स में ही ऐड करेंगे। उसका इम्पैक्ट एक्चुअली कहाँ पर आएगा, सेल्स पे, क्योंकि डेटर्स हमारे कब क्रिएट होते हैं, जब हमारी क्रेडिट सेल्स बढ़ती हैं। क्रेडिट सेल्स बढ़ेंगी तो हमारे डेटर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो डेटर्स एंड सेल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो उस केस में अगर डेटर्स में कोई चेंज आ रहा है तो वो सेल्स में चेंज आ रहा है, इसलिए डेटर्स में चेंज आ रहा होगा। तो यूजुअली क्या होता है, सेल्स में ऑलरेडी सब इंक्लूडेड होता है, तो इसलिए कभी भी आपको डेटर्स एडजस्टमेंट में नहीं मिलते। ठीक है, सन्ड्री डेटर्स हमारे एसेट साइड पर हम शो करते हैं, पर नेट डेटर्स आते हैं। कोई भी फर्दर बैड डेट्स है, प्रोविजन हम क्रिएट कर रहे हैं, उसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगी, दिस इज आवर नेट डेटर्स व्हिच वी शो इन आवर एसेट साइड। चलो यहाँ पर अब हमने इंटरेस्ट ले लिया लोन का, हमें यहाँ पर दिया हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड इज योर इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो ये आप अपने P&L के क्रेडिट साइड पर शो कर दोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500। इसके अलावा यहाँ पर आपको और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। सो यू विल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। यहाँ पर आपने जितने एक्सपेंसेस थे सारे एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिए, इनकम यहाँ पर लिख दी। अब आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकालना है। तो दिस इज हाउ मच, दिस इज योर 44,000। टोटल जो आपका आ रहा है नेट प्रॉफिट का वो 44,000 आ रहा है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से नेट प्रॉफिट निकालोगे। नेट प्रॉफिट इज हाउ मच, किसी ने नेट प्रॉफिट निकाला है तो बताओ, इट शुड बी 2,000। नेट प्रॉफिट आपका 2,000 आना चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बेटा आपको 3% क्रिएट करने के लिए बोला है। ठीक है, और प्रोविजन मैंने आपको बताया था, प्रोविजन हमेशा नेट डेटर्स का क्रिएट करते हैं। नेट डेटर्स मतलब डेटर्स में जो भी एडजस्टमेंट्स है, कि सपोज यहाँ पर हमें फर्दर बैड डेट्स दिया हुआ है तो पहले जो भी एडजस्टमेंट है डेटर में वो एडजस्टमेंट हम कर देते हैं, उसके बाद जो हमारे नेट डेटर्स होते हैं उनका हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। फाइन, तो यहाँ पर हमारे नेट डेटर्स हमारे थे 18,000 टोटल डेटर्स थे, जिसमें से 1,000 एडिशनल बैड डेट्स हमने माइनस कर दिया, फर्दर बैड डेट्स। तो टोटल हमारे बचे 17,000। तो 17,000 का 3% हुआ 510। So this is the provision created for doubtful debts. Very good. 2,000 आ रहा है बेटा net profit. Good. So let's make the balance sheet. बैलेंस शीट बना के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
आई एम मेकिंग इट हियर. Balance sheet as at 31st March 2016. Balance sheet as at 31st March 2016. बैलेंस शीट बनाइए सब अपनी. पहले एसेट साइड बना रहे हैं हम. एसेट, लाइबिलिटीज, अमाउंट. एसेट में सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया हुआ है मशीनरी. मशीनरी की वैल्यू थी 70,000. मशीनरी इज हाउ मच? 70,000. इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 7,000. 63,000 इज मशीनरी. फिर है फर्नीचर. फर्नीचर आपको दिया था 20,000. इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन 2,000. तो फर्नीचर आपका आ गया 18,000. आपके जो फिक्स्ड एसेट थे यही है. अब आप ले लोगे स्टॉक, विच इज योर क्लोजिंग स्टॉक. 11,000 इज योर क्लोजिंग स्टॉक. स्टॉक के बाद यू विल टेक डेटर्स. तो डेटर्स आपको थे टोटल 18,000 के डेटर्स दिए थे. इसमें से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स जो आपके थे 1000, हो गया 17,000. इसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो आपने क्रिएट किया था, वो आपका है 510 जो हमने P&L अकाउंट में निकाला था. तो नेट आपका हो गया 16,490. दिस इज योर नेट डेटर्स. इसके बाद आपको और क्या दिया है यहाँ पर? एसेट्स तो एसेट्स कुछ नहीं है. अब इसके अलावा प्रीपेड हमें यहाँ पर क्या दिया था? प्रीपेड इंश्योरेंस दिया था. प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमें दी थी 500. फिर आपका आएगा कैश इन हैंड एंड एट बैंक. कैश इन हैंड एट बैंक इज 10,000. एसेट साइड इज कंप्लीटेड. लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल आएगी सबसे पहले. कैपिटल आपको दी हुई है 95,000. इसमें ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट जो हमने निकाला 2,000. टोटल हुआ 97. इसमें से माइनस कर देंगे ड्राइंग्स. तो ड्राइंग्स यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस में दी हुई है 7,800. और जो उसने गुड्स विड्रॉ किए थे, तो एक तो हमने परचेजेस में से माइनस कर दिए थे, दूसरा हमने बोला था ड्राइंग्स में ऐड कर देंगे. तो वो जो गुड्स विड्रॉ थे 1,000 रुपीज, तो वो इसकी ड्राइंग्स का पार्ट हो जाता. तो टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी 8,800. 7,800 प्लस 1,000 रुपीज के जो गुड्स विड्रॉ की. तो ये टोटल हमारा कितना हो गया? 95,800. सॉरी, दिस शुड बी डिडक्टेड. तो ये कितना हो गया हमारा? 88,200. दिस इज योर नेट कैपिटल. इसके बाद यहाँ पर आपको लोन दिया हुआ है 10% बैंक लोन. बैंक लोन है हमारा 10,000. उस पे है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 500 जो पे नहीं किया है. इसके अलावा हमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स है हमारे 15,000. सारे हमारे वो आ गए. अब हमारे आउटस्टैंडिंग जो भी हमें दिया हुआ है, वेजेस आउटस्टैंडिंग जो हमारे ट्रायल बैलेंस में था 2,000. सैलरीज आउटस्टैंडिंग 3,000. और एक और चीज हमारी आउटस्टैंडिंग थी, सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हमें एडजस्टमेंट में दिए थे 290. So this is all about the items we need to post in this balance sheet. अब बैलेंस शीट का टोटल हम चेक करेंगे. It should be equal and the amount should be 1,18,990. The total of balance sheet should be 1,18,990. Net profit 2,000 आया सबका. वेरी गुड.
बेटा स्क्रीन वैसे ऑपोजिट शो नहीं होती है, बट आई डोंट नो कि आप लोगों को ऑपोजिट क्यों शो हो रही है. देयर माइट बी सम कैमरा सेटिंग्स यू नीड टू डू, क्योंकि मैंने और भी क्लासेस लिया है तो उसमें ऐसा कोई बोर्ड का इशू नहीं होता कि बोर्ड उल्टा दिख रहा है. स्टूडेंट विल बी अलाउड टू यूज कैलकुलेटर. अब आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज करो, सिंपल कैलकुलेटर, उस पर आप सारा कैलकुलेशंस कर सकते हो. अगर आपको प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और अगर आपको एडजस्टमेंट में भी गिवन है, तो उसमें कई बार क्या होता है कि आपको बोला जाता है कि आपको सिर्फ इतना पर्टिकुलर प्रोविजन बनाना है. कि सपोज आपको प्रोविजन जो है ट्रायल बैलेंस में दिया है 3000 और आपको बोला है एडजस्टमेंट में क्रिएट प्रोविजन ऑफ 5% ओनली, तो आप नेट डेटर्स का 5% प्रोविजन निकालोगे, दोनों प्रोविजन को कंपेयर करोगे, जो ट्रायल बैलेंस में और जो आपने निकाला है. अगर आपको नया प्रोविजन जो है वो क्रिएट करना होता है, अगर आपका पुराना आपका कुछ प्रोविजन वो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो जितना चाहिए अगर उतना है तब तो ठीक है. अगर उससे ज्यादा है कि सपोज आपको बनाना 2000 है, आपको ऑलरेडी 3000 बना हुआ, तो इसका मतलब आपका 1000 ज्यादा क्रिएटेड है, उसको आप राइट ऑफ कर दो, क्रेडिट साइड पर लिख दो. ठीक है, तो 3000 में से 1000 राइट ऑफ कर दोगे, 2000 का प्रोविजन रह जाएगा जो चाहिए. और अगर आपको 2000 का प्रोविजन बनाना है, आपका अभी एट प्रेजेंट सिर्फ 1000 है, तो 1000 को और क्रिएट कर दो, 1000 आप डेबिट साइड पर दिखा दो, तो आपका 1000 ऑलरेडी है, 1000 आपने और क्रिएट कर दिया. तो अल्टीमेटली आपको नया प्रोविजन क्रिएट करना होता है वहां पर. आई डोंट हैव लिंक ऑफ अदर व्हाट्सएप ग्रुप्स बेटा, यही जो आए थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया. आई डोंट हैव लिंक. You can write me on Teams. I'm not part of any WhatsApp group. You can write me on Teams. Sandeep, what is your problem? I don't have link of other WhatsApp group beta. Chaliye, so this question is completed. Total of balance sheet should be 1,18,990. In the next class also we will continue with this topic. फाइनल अकाउंट्स, उसमें मैं नेक्स्ट क्लास में एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है जिसमें नई डिफरेंट टाइप की एडजस्टमेंट्स आपकी होंगी, वो वाला क्वेश्चन मैं जो है आपका शुरू कराऊंगी. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. अगर आपको कोई भी और इसके अलावा डाउट है, ये जो है आपकी बोर्ड की ये प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज आप किसी से पूछना. ये कुछ सेटिंग्स होंगी जो आप चेंज करोगे तो यू विल गेट इट क्लियर. आपको वो क्लियर नजर आएगा, बट हो सकता है कुछ सेटिंग्स में इशू है, नहीं तो बोर्ड उल्टा नजर नहीं आता है. फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द डे. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जो भी हमारी शेड्यूल है.